Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on the topic synchronization in threads. Earlier I discussed on the basic threads, how to create the threads, basic concepts. So there are two methods to create the thread. First one is by extending the thread class, and second one by implementing the runnable interface. Okay, so in this topic I will discuss on the advanced threading concepts like concurrency, synchronization. So let's jump into concurrency methods. So first of all, what is concurrency? Concurrency means it is the ability of the program to run several small subparts of program parallelly. Parallelly means parallelly or asynchronous. Means if there are multiple jobs, suppose there are multiple tasks and we have to execute those multiple tasks concurrently. Concurrently means at the same time. Okay, so to handle those concurrency, there are methods used in the thread. So first, wait method. So using this wait method, what it does, it will stop the current thread, and it is used with notify method and notify all. So basically notify method and notify all method are the signals which, if thread has used this notify method, so it means it is asking to other thread that my task is completed and you can continue. So wait method is also used for inter-thread communication. Means internally there are multiple threads, so in between to communicate between these multiple threads, wait method is used. And wait method is present inside the object class. Okay, so then there is join method. Join method, it is used to complete the thread execution, then proceed with other execution of threads. And join method is the present in thread class, java.lang.thread class. So join method will complete the, if thread is using join method, then it means that this thread will complete its task, and after completion then other execution of threads will proceed. Okay, so wait method is present in object class and join method is in thread class. Okay, practically I will demonstrate it in my next video. So this is basically the theoretical concept. Okay, you should know what are these wait and join used in the threads. Okay, so next slide, there is yield method. So what it will do, it will stop the current executing thread. Means if the thread which is executing, and which one will be the current thread, so that current thread which is executing means it is in the running state, so that current executing thread will be stopped and allowed to execute other waiting threads on the basis of priority. It means there are multiple threads, so in the multi-threaded environment, if one thread is executing its task, then if there is yield method used, then current executing thread will stop. जो करंट में चल रहा होगा थ्रेड, वो स्टॉप होके वो जो वेटिंग थ्रेड्स हैं, यानी कि जो प्रायोरिटी बेसिस पे वो वेटिंग थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उनकी जैसी प्रायोरिटी होगी. ठीक है, तो क्यू पे वो वेटिंग थ्रेड्स हैं, क्यू पे वेट रखे हुए हैं वो थ्रेड्स, तो वन बाय वन वो वेटिंग थ्रेड्स
on the basis of priority they will execute. तो yield method thread class का ही है, static method है, thread class का ही है, जैसे join है. ओके, सो yield method भी एक मेथड जो कॉन्करेंट मेथड में कॉन्करेंसी में यूज होता है इफ देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स. अब वेटिंग थ्रेड्स कौन से हो गए? जो थ्रेड्स अभी रनिंग स्टेट में आए नहीं है, जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेटिंग स्टेट में है. और स्लीप मेथड मैंने बताई था कि ये क्या करेगा, कुछ जो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है उसको कुछ मिली सेकेंड का आप टाइम रख सकते हैं स्लीप के अंदर, जो कि लॉन्ग टाइप का होता है. तो वो टाइम रख करके स्लीप के अंदर वो उसको कुछ टाइम तक स्टॉप कर देगा, यानी कि वो थ्रेड वेट करेगा उतने टाइम तक जितना टाइम हमने डाला होगा, जितना सेकंड डाला होगा, ठीक है. गेट प्रायोरिटी भी होता है, वो थ्रेड की प्रायोरिटी लेता है. गेट नेम मतलब थ्रेड का नाम, जैसे एक मेथड है करंट थ्रेड डॉट एग्जीक्यूट करंट थ्रेड डॉट गेट थ्रेड नेम, तो उससे मेरे को थ्रेड का नाम पता चल जाता है. थ्रेड का नाम इस टाइप से आएगा, जैसे थ्रेड -0, थ्रेड -1, तो इस टाइप के थ्रेड्स के नेम होते हैं. देन synchronization, which is the most important part in multi-threading. So what synchronization means, so as I told you about the concurrency in multi-threaded environment, how to execute all the threads concurrently, means at the same time, means parallelly. Okay, so in the same way synchronization is also used to control, used to execute the multiple threads. So it is used to control the access to multiple threads for a resource. Suppose if my resource is a printer, and in that printer I have given the jobs that printer will execute these suppose 4 jobs or 5 jobs. So printer is only one, but there are jobs, there are different jobs, there are multiple jobs. अलग अलग जॉब हैं प्रिंटर के पास, लेकिन प्रिंटर तो एक ही है ना, तो वो एक रिसोर्स है. तो अब जॉब 5 है, उसको सपोज करो उसको प्रिंट करना है, अलग अलग जॉब्स हैं उसके पास. तो जैसे जैसे जॉब्स वेटिंग क्यू में आएगी जैसे जैसे जॉब्स, तो 1 by 1 वो प्रायोरिटी के बेसिस पे उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करेगा. तो इसी प्रकार से रिसोर्स हमारा एक प्रिंटर, मान लो प्रिंटर एक रिसोर्स है जिसके लिए मल्टीपल जॉब्स वेट कर रहे हैं, ठीक है. ऐसे ही सिंक्रोनाइजेशन में एक रिसोर्स के लिए मल्टीपल थ्रेड्स वेट कर रहे होते हैं. अब रिसोर्स एक ही है, तो एक थ्रेड एक ही टाइम पे वो रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा. ये नहीं कि उस रिसोर्स को बहुत सारे थ्रेड ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है. एक टाइम में एक ही थ्रेड उसे एक्सेस कर पाएगा उस रिसोर्स को. तो बाकी थ्रेड्स फिर कैसे सिंक्रोनाइज होंगे? तो यही कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइजेशन है, यानी कि आप कह सकते हो थ्रेड्स में तालमेल. इसका हिंदी मतलब हुआ तालमेल थ्रेड्स के बीच में. तो सिंक्रोनाइजेशन के टाइप होते हैं प्रोसेस, सिंक्रोनाइजेशन और थ्रेड. प्रोसेस फिर बड़ा, जो कि JVM में हम थ्रेड की बात करते हैं. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हो गया, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं अभी थ्रेड का बताऊंगा, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन. तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस और थ्रेड टाइप के होते हैं. मैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की बात करूं तो सिंक्रोनाइज मेथड होता है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक होता है, और स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन की मदद से हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं थ्रेड्स को, ठीक है. तो फर्स्ट वन
डिस्कस करते हैं सिंक्रोनाइज मेथड. ओके, सिंक्रोनाइज मेथड इज यूज्ड टू लॉक एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शेयर्ड रिसोर्स. रिसोर्स कैसा है? शेयर्ड है. मैंने अभी जैसे प्रिंटर का एग्जांपल बताया, तो शेयर्ड रिसोर्स है, तो सिंक्रोनाइज मेथड क्या करेगा? ऑब्जेक्ट में लॉक लगा देगा. फॉर रियल एग्जांपल, यहाँ पर लॉक का मतलब हुआ हमने ताला लगा रखा है. सपोज करो एक रूम में हमने ताला लगा रखा है, वो रूम मेरा शेयर्ड रिसोर्स है. उस रूम में और लोग भी आ रहे हैं, और जब मैं आऊँगा, ठीक है, तो मेरे पास उसकी की भी होगी और लॉक भी होगा. तो लॉक और की मेरे पास होंगे. तो जब मैं उसे शेयर करूंगा उस रिसोर्स को, तो मेरे पास लॉक और की भी होगी, तो मैं लॉक भी लगाऊंगा उसमें. ठीक है, तो यही रियल एग्जांपल से ये थ्रेडिंग में भी यूज कर रखा है लॉक का कॉन्सेप्ट. तो सिंक्रोनाइज मेथड ऑब्जेक्ट को लॉक करता है. ठीक है, जब कोई थ्रेड, व्हेन अ थ्रेड इन्वोक्स अ सिंक्रोनाइज मेथड, it automatically acquires the lock for that object and releases when the thread completes its task. अब थ्रेड ने, सपोज करो कोई थ्रेड बना रखा है तुमने और सिंक्रोनाइज मेथड है. सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर आपने लॉजिक लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट है. जब थ्रेड उस सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल करेगा, वो लॉग भी लेगा. ठीक है, वो जो थ्रेड है वो उस मेथड का लॉग भी लेता है. ठीक है, और जब उसका पूरा थ्रेड का काम हो जाता है, तब जाके वो रिलीज भी कर देता है. फिर लॉक को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स हैं. एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल थ्रेड. तो एक थ्रेड का काम हो जाएगा जब, और उसने सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस किया और लॉक लगा के जब पूरा हो गया तो लॉक रिलीज भी कर दिया. यानी कि अब वो मेथड, जो सिंक्रोनाइज मेथड है, वो अब कोई और थ्रेड के लिए एक्सेस, कोई और थ्रेड एक्सेस उसे कर सकते हैं. यानी कि अब वो फिर से शेयरेबल हो गया. ठीक है, क्योंकि लॉक रिलीज कर दिया पहले वाले थ्रेड ने, ताकि और थ्रेड भी उसको फिर एक्सेस कर पाए. ये होता है कॉन्सेप्ट. सिंक्रोनाइज मेथड्स क्या काम कर रहा है? वैसे एक तरीके से थ्रेड इंटरफेरेंस को प्रिवेंट कर रहा है. थ्रेड इंटरफेरेंस क्या हुआ? आपस में थ्रेड का एग्जीक्यूशन सही रहे, यानी कि इंटरफेरेंस ना हो उनके बीच. और मेमोरी कंसिस्टेंसी एरर भी. थ्रेड आपस में मतलब तालमेल बैठाल के, जिसे हम सिंक्रोनाइज बोलते हैं, वैसे थ्रेड काम करें. तो वो एक सिंक्रोनाइज मेथड एक प्रिवेंट भी कर रहा है कि थ्रेड का इंटरफेरेंस ना हो. ओके, और दूसरा सिंक्रोनाइज ब्लॉक की बात करें तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक का सिंटेक्स मैं ये बता दे रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली फिर बताऊंगा. फिलहाल के लिए ऐसे लिखते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड है. इस मेथड के अंदर हमने दिस आर्गुमेंट पास कर रखा है. ठीक है, दिस होता है करंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस, यानी कि जो मेरी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट. ओके, उस सिंक्रोनाइज ब्लॉक, ये ब्लॉक है कर्ली ब्रेसेस के अंदर. तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो क्रिटिकल सेक्शन होगा. अब क्रिटिकल सेक्शन का, एकदम क्रिटिकल सेक्शन को ये मत समझना, वो एक बेसिकली कोड होता है, स्टेटमेंट है, लाइन ऑफ कोड है. कोई भी सपोज करो आपको रीड और राइट ऑपरेशन करने हैं. ठीक है, तो वो सिंपल लॉजिक है. तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं सिंक्रोनाइज दिस के अंदर. ओके, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक उसी काम आता है कि अगर मुझे, देयर आर मैनी लाइंस ऑफ कोड, ओके, और मुझे केवल इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट करना है, तो तब मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज करूंगा. यानी कि मेरा इंपॉर्टेंट कोड होगा जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, सपोज करो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. ओके,
रीड और राइट, मतलब वैल्यू चेंज कैसे हो रही है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से या डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। सपोज करो कुछ आप वहाँ पे तो यूज़ कर रहे हो, तो वही लाइन मेरे को अगर एग्जीक्यूट करानी है तो इसीलिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखो, तो केवल उतना ही थ्रेड एक्सेस करेगा। तो केवल हमने इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ कोड को ही सिंक्रोनाइज करा, बाकी को नहीं करा, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट नहीं था। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब जहाँ पे रीड और राइट मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वैल्यूज में। ओके, तो यहाँ पर स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन भी है। स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन में वही है सेम जैसे सिंक्रोनाइज मेथड है, बट उसमें स्टैटिक हम कीवर्ड लगाते हैं। ओके, स्टैटिक कीवर्ड हमने अगर सिंक्रोनाइज मेथड में लगा दिया तो वो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन हो गया। देन आई विल डिस्कस ऑन द लॉक्स। तो लॉक इज एन इंटरफेस, ठीक है, उस पर बहुत सारे मेथड्स होंगे लॉक इंटरफेस के अंदर। तो लॉक का कॉन्सेप्ट कब आया? जब सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस करता है थ्रेड, तो वो लॉक एक्वायर करता है, ठीक है, उसे लॉक लेना पड़ता है उस थ्रेड को, तभी वो उसको एक्सेस कर पाएगा, तभी वो उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। सिंक्रोनाइज मेथड का लॉक एक्वायर करना पड़ता है थ्रेड को। अगर उसे थ्रेड को लॉक नहीं मिला या वो सिंक्रोनाइज मेथड कोई दूसरा थ्रेड उसे उस सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस कर रहा है, तो उसे लॉक जब तक नहीं मिलेगा वो थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा सिंक्रोनाइज मेथड का। तो इसीलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज मेथड के कॉन्सेप्ट में ही लॉक का कॉन्सेप्ट भी आया। तो लॉक इंटरफेस होता है और टू टाइप्स के लॉक हैं, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक एंड क्लास लेवल लॉक। ऑब्जेक्ट लेवल लॉक में क्या होता है कि कोई सिंक्रोनाइज मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक मेथड बना रखा है, या फिर नॉन स्टैटिक कोड ब्लॉक है, सिंक्रोनाइज का ब्लॉक है। तो मल्टीपल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में एक थ्रेड उसको एग्जीक्यूट कर रहा है सिंक्रोनाइज मेथड को, ठीक है, ऑन द गिवन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि जो क्लास के अंदर वो मेथड बना हुआ है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में वो थ्रेड उसे एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उस क्लास का रन टाइम जो ऑब्जेक्ट बना होगा उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट को वो थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सिंटैक्स इस टाइप से ही जैसे मैंने अभी बताया था, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लिख के उसके अंदर दिस करंट इंस्टेंस होल्ड करता है ऑब्जेक्ट का, तो दिस आर्गुमेंट में पास करा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक का मतलब सिंपल ये है कि क्लास के मतलब ऑब्जेक्ट का एक यूनिक लॉक होगा, क्लास के ऑब्जेक्ट का एक यूनिक लॉक होगा। तो उस सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस करने के लिए थ्रेड को लॉक एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, और वो लॉक ऑब्जेक्ट लेवल लॉक है, यानी कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के बेस पे वो एग्जीक्यूट करेगा सिंक्रोनाइज मेथड। क्लास लेवल लॉक भी उसी टाइप का है ऑब्जेक्ट लेवल लॉक की तरह, लेकिन क्लास का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, सपोज करो एक क्लास के अगर 50-100 इंस्टेंस हमने बना रखे हैं, जितने भी बना रखे हैं क्लास के, हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस बना रखे हैं, तो वो सारे इंस्टेंसेस के लिए लॉक लगेगा, ठीक है, यानी कि जो मेरा एक इंस्टेंस भी होगा क्लास का, तो क्लास के एक इंस्टेंस पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, बाकी थ्रेड बाकी इंस्टेंस के लिए लॉक रहेंगे, ठीक है। तो क्लास लेवल लॉक में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि मेरा एक क्लास सिंटेक्स ऐसे है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड, फिर उसके अंदर आर्गुमेंट्स कैसे लिखेंगे हम, क्लास का नाम सपोज करो कुछ भी है, डॉट क्लास, यानी कि ये डॉट क्लास फाइल। तो इस डॉट क्लास का मतलब यहाँ पे ये पूरी क्लास के जितने भी इंस्टेंस मैं बनाऊंगा, मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए लॉक लगता है, ठीक है। तो थ्रेड इस सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लेवल लॉक, यानी कि अगर मेरे मल्टीपल इंस्टेंसेस बने हैं तो एक इंस्टेंसेस के लिए एक थ्रेड ही एग्जीक्यूट करेगा इस सिंक्रोनाइज मेथड को,
बाकी थ्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं क्लास के तो कितने भी इंस्टेंसेस बना सकता हूँ, तो डिफरेंट इंस्टेंसेस है। सपोज करो 10 इंस्टेंस बनाए मैंने, 10 ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के, तो एक ऑब्जेक्ट पहले लॉग एक्वायर करेगा, ठीक है, और वो अपना टास्क जब तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो बाकी थ्रेड के लिए जो ये बाकी इंस्टेंसेस बना रखे हैं मैंने 9 इंस्टेंसेस, वो लॉग्ड हैं, ठीक है। तो क्लास लेवल लॉकिंग हम शुड ऑलवेज बी डन टू मेक स्टैटिक डाटा थ्रेड सेफ, यानी कि जो स्टैटिक डाटा मतलब क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, तो वो थ्रेड सेफ हो। थ्रेड सेफ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज होता है कि मेरा कॉन्करेंटली मल्टीपल थ्रेड्स में यूज होता है। जैसे एक थ्रेड एक टास्क को कंप्लीट करेगा और जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा उस मेथड को, तो थ्रेड सेफ है, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स उस मेथड को एक साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, थ्रेड सेफ है। ओके, थ्रेड सेफ का मतलब यहाँ पे यही बात होती है कि वो सिंक्रोनाइज्ड वे में यूज्ड है। तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब वही है कि क्लास लेवल, वो मेरे क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है। क्लास के नेम से स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल जो बना रखे हैं वो मैं क्लास के नेम से यूज कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड।